Hello everyone. Do you have a dream to be an assistant professor in university, or do you have a dream to do your research, your PhD from an IIT or Central University? Then I am going to help you. I, Dr. Nitesh Jaiswal, going to discuss all these things in this video. How to crack CSIR exam without taking any coaching in your very first attempt. It sounds quite impossible, ना? मुश्किल लगता है, but you can do it. Many have already do it, so you can also do it. I will tell all the important steps, all the important do's which you have to perform to achieve success in this exam. Let's start from basic to advanced. The first question, what is CSIR UGC NET exam and for whom this exam is and why you have to do it? CSIR UGC NET exam is a national level exam which is conducted by National Testing Agency for last 1 year on the behalf of Council of Scientific and Industrial Research, that is CSIR, on a bi-yearly basis for those science stream student who want to pursue research in India and want to be assistant professor in higher institution. बेसिकली इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद, क्रैक करने के बाद आप इंडिया में किसी भी इंस्टीट्यूट से पीएचडी परस्यू कर सकते हैं और किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये एग्ज़ाम 5 सब्जेक्ट्स में कंडक्ट होता है। पहला केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, अर्थ साइंस, मैथमेटिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस। आई एम गोइंग टू टेल यू how to crack CSIR exam for chemical science subject in your very first attempt. What is eligibility of this exam? Those who are pursuing MSc or pass MSc are eligible for this exam. The eligibility marks for general and OBC is 55% and for scheduled caste and scheduled tribe is 50%. फॉर्म भरते समय ध्यान रखिएगा कि जब ऐसे लोग जो MSc परस्यू कर रहे हैं, एनरोल कर रहे हैं, दोज विल अप्लाई अंडर रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी, RA कैटेगरी। एंड अप्लाई करते समय 2 ऑप्शन मिलेगा, फर्स्ट इज JRF, सेकेंड इज नेट। तो आपको JRF के लिए अप्लाई करना है अगर आपकी एज 28 से नीचे है, 28 या 28 से नीचे है, क्योंकि JRF अप्लाई करने पे आप JRF और नेट दोनों के लिए ऑटोमेटिक एलिजिबल हो जाते हैं। बट अगर आपने गलती से नेट अप्लाई कर दिया तो आप JRF के लिए फिर एलिजिबल नहीं रह जाएंगे, फिर आप केवल नेट और नेट ही क्वालिफाई कर पाएंगे। इसलिए वो स्टूडेंट जिनकी एज 28 से कम है वो JRF कैटेगरी के लिए ही अप्लाई करें। एक और क्वेश्चन, फॉर्म अप्लाई करते समय आपको क्वेश्चन पेपर का मोड पूछा जाएगा। मोड में हिंदी और इंग्लिश 2 मोड होगा। अगर आप इंग्लिश में अप्लाई करते हैं तो आपको केवल और केवल इंग्लिश में पेपर देने को मिलेगा, लेकिन अगर आप हिंदी में अप्लाई करेंगे तो यू हैव टू give your question answer in bilingual mode, that is Hindi and English both. For JRF there is a age limit that is of 28 upper age limit, but for assistant professor there is no age limit, means at any age you can give the exam of NET. The full form of NET exam is National Eligibility Test for Lecturership. That lecturership is a old term, new term is assistant professor. इस साल का नोटिफिकेशन जून 2020 के एग्ज़ाम के लिए आ चुका है। ये फॉर्म 16 मार्च से फिल किया जा रहा है। लास्ट डेट हैज़ बीन एक्सटेंडेड अप टू 15 मई 2020। द एग्ज़ाम डेट इज़ टेंटेटिवली शेड्यूल्ड ऑन 21st June 2020, but there is a slight chance that date may be further extended. So, but you have to prepare within this time frame. Don't wait for extension of exam date. ये सब तो इसका बेसिक था। अब आते हैं एग्ज़ाम पे सीधे। इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए यू हैव टू ओनली गॉट 50% मार्क, 50 to 60% marks. If you got 50 to 60% mark, definitely you are going to qualify this exam. तो आपको कितना पाना है? 60%, फॉर सेफर साइड 60%।
और उस 60% कट ऑफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आने वाले स्लाइड में मैं आप सबके साथ डिस्कस करूँगा। इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है? द क्वेश्चन पेपर हैज़ 3 पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी. Part A is a quantitative aptitude which have maths, reasoning and all those things, and part B and C is a quite subjective part where question belongs to chemistry subject. Part A consists 20 question, out of which you have to attempt 15 question each of 2 marks. Part B have 40 question, you have to attempt 35 question, this also have 2 marks question, and part C have 60 marks, 60 question, you have to attempt only 25 question, each question is of 4 marks, so this part is of 100 marks, B part is of 70 marks and A part is of 30 marks. Overall the paper will be of 200 marks. You have to attempt 200 marks. Out of 200 marks you have to score at least 110 to 120 for a safe qualifying reason. Qualify तो आप 100 पे भी कर जाओगे, बट फॉर अ सेफर जोन यू हैव टू अचीव 110 एंड 120. बट टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये पेपर 200 मार्क्स का नहीं होता है. दिस पेपर इज ऑफ 360 मार्क, 360 मार्क्स का ये पेपर होता है. उसमें से आपको 120 लाना होता है. सो हाउ यू हैव टू अचीव दिस. नाउ क्वेश्चन कम, आप ये कैसे करेंगे? What is the important step to do this, to qualify this exam? The first thing which should come in your mind, what is the syllabus of this exam? लड़ाई लड़ने से पहले लड़ाई का मैदान तो पता होना चाहिए, तभी तो लड़ाई लड़ेंगे. तो सबसे पहले आप सिलेबस देखिए, और ये सिलेबस आपके लिए कोई नया सिलेबस नहीं है. आप अपने पीजी क्लासेस में जो चीज़ें पढ़ते हैं, जो आपने यूजी में पढ़ा है, वही सिलेबस फिर से आपको थोड़ा मॉडिफिकेशन, थोड़ा एडवांसमेंट के साथ फिर से पढ़ना होगा. वन मोर थिंग, आइडेंटिफाई द इम्पॉर्टेंट टॉपिक. आई विल टेल विच टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट, विच इज नॉट, एंड नेवर कवर द होल सिलेबस because you are not going to attempt 360 marks question. You have to only attempt 200 mark question, which will not from all syllabus, which will from only 50% syllabus. If you cover 50% syllabus, you will be definitely going to qualify this exam. Second, understand the pattern of exam. What is the pattern? Which I have told earlier. There is a negative marking also. So you have to all aware about the exam pattern. You have to practice that. And then after knowing the syllabus, जब आपको syllabus पता चल गया, एग्जाम का पैटर्न पता चल गया, तो अब आता है कि उस सिलेबस को कवर कैसे करें. इफेक्टिवली स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा. दैट इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट. अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो सारा मेहनत, सारा सिलेबस रखा रह जाएगा. सो देयर शुड बी इफेक्टिव स्टडी प्लान. इफेक्टिव, नॉट केवल स्टडी करने से काम नहीं चलेगा. स्टडी शुड बी इफेक्टिव. जो पढ़ रहे हैं वो प्रोडक्टिव होना चाहिए. उसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उस पढ़ाई का बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं क्वेश्चन सॉल्व करने में. पॉलिश योर स्किल. अपने स्किल को आपको खुद से पॉलिश करना पड़ेगा. इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर. इफ यू डिडंट अटेम्प्ट लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, you are doing a blunder. You are doing a blunder, mistake, very big mistake. So never skip last year question papers. Always do questions. मैं तो ये कहता हूँ कि आप 10 घंटे पढ़ते हो, आप 7 घंटे पढ़ते हो, तो 60-40 का रेशियो बनाओ. 60 मिनट पढ़ो, 40 मिनट आप क्वेश्चन सॉल्व करो. बिकॉज पढ़ने का एप्लीकेशन ही क्वेश्चन सॉल्व करना है. थियरी इस आप जो पढ़ रहे हो दैट इज थियरी, और जो आप सॉल्व कर रहे हैं दैट इज प्रैक्टिकल. तो प्रैक्टिकल जब तक नहीं करेंगे तब तक थियरी का कोई मतलब नहीं है. ठीक है. नाउ लेट्स कम डिटेल इन सिलेबस. मैंने शुरू में कहा कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एक इफेक्टिव प्लान होना चाहिए. इफेक्टिव प्लान का मतलब क्या है? इंडियन यूनिवर्सिटी कल्चर में पीजी में स्पेशलाइजेशन होता है. लाइक एमएससी केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल और एनालिटिकल जैसे 4 स्पेशलाइजेशन होते हैं जो आपको सेकेंड ईयर में लेने पड़ते हैं. तो CSIR का जो एग्जाम होता है उसमें भी जो क्वेश्चन आते हैं वो स्पेशलाइजेशन वाइज आते हैं. मतलब हर स्पेशलाइजेशन से इक्वल क्वेश्चन मार्क्स आता है, इक्वल क्वेश्चन आते हैं. जनरली
1/3 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक से रहता है, 1/3 क्वेश्चन ऑर्गेनिक से रहता है, एंड 1/3 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से रहता है। तो इट्स मीन कि ऑर्गेनिक के स्टूडेंट, इनऑर्गेनिक के स्टूडेंट और फिजिकल के स्टूडेंट सबके लिए इक्वल चांसेस होते हैं। इसी कारण से उसमें इतना ऑप्शन होता है क्वेश्चन का। सेक्शन सी में 60 क्वेश्चन होते हैं क्योंकि सबके उसमें 20-20 क्वेश्चन होते हैं। तो आपका जो स्पेशलाइजेशन है, आपको वहाँ मेहनत करने की ज़रूरत है। बाकी पोर्शन में आप नहीं भी कवर करेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपने स्पेशलाइजेशन या अपने इंटरेस्ट पे वर्क करने की ज़रूरत है, ना कि पूरे सिलेबस पे वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आप पूरे सिलेबस के चक्कर में पढ़ेंगे तो फिर यू आर गोइंग टू डू ए ब्लंडर। अपना इंटरेस्ट पहचानिए, आपके जो स्ट्रेंथ्स हैं उस पर काम करिए और कुछ और स्ट्रेंथ फाइंड आउट करिए। मान लीजिए उतने से कवर नहीं हो रहा है, आपको जो सिलेबस पर जो आपका स्ट्रेंथ है वो उसके मार्क्स को, कट ऑफ मार्क्स को क्लियर करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो यू हैव टू फाइंड आउट सम मोर स्ट्रेंथ, सम मोर टॉपिक्स इन अदर स्पेशलाइजेशन, फ्रॉम अदर स्पेशलाइजेशन। मान लीजिए आपका इनऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन है, तो जरूरी नहीं है कि आपका इनऑर्गेनिक का 20 क्वेश्चन आया तो आप 20 का 20 भी कर जाएंगे। तो 25 करना है तो आपको 25 इनऑर्गेनिक से आएगा नहीं, 20 इनऑर्गेनिक से आएगा। 5 क्वेश्चन आपको फिजिकल या ऑर्गेनिक से करना है तो आपको फिजिकल या ऑर्गेनिक के भी कुछ टॉपिक्स पे कमांड होना चाहिए। सिमिलर अप्लाई फॉर ऑर्गेनिक एंड फिजिकल ऑल्सो। नाउ आई विल डिस्कस ईच स्पेशलाइजेशन इन डिटेल। CSIR के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो मुझे लगता है कि इनऑर्गेनिक का सिलेबस या इनऑर्गेनिक के टॉपिक्स बहुत ईजी हैं। इससे अगर ऑर्गेनिक का कोई स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए ये बेनिफिट हो जाता है कि वो इनऑर्गेनिक से कुछ टॉपिक्स को कवर करके इजीली क्रैक कर सकता है। फिजिकल का कोई स्पेशलाइजेशन है तो वो इसको स्पेशलाइजेशन को पढ़ के क्रैक कर सकता है एग्जाम को, बट इनऑर्गेनिक वाला है तो उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। सो उसके लिए ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं और इसके साथ साथ उसको ऑर्गेनिक के भी कुछ टॉपिक्स, फिजिकल के भी कुछ टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ। अब जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये कुछ टॉपिक्स हैं जो सामने लिखे हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे। इसमें से कुछ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको सारे स्पेशलाइजेशन को कवर करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बॉन्डिंग, सिंपल बॉन्डिंग, एवरी ईयर 8 to 16 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। कैसे क्वेश्चन आते हैं? कभी कभी पूछ लेगा बॉन्ड ऑर्डर, शेप, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, पाई बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग, कुछ इसके स्पेशल केसेस, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, बैलेंस बॉन्ड थियरी, वेस्पर थियरी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ से आ जाते हैं और जो इजी होते हैं, आप आसानी से उनको कर सकते हैं। इसके अलावा केमिकल पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के। कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, which have electronegativity highest, which have electron affinity highest, या समथिंग डायगोनल रिलेशनशिप से कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन इजी टू क्रैक होते हैं, आसानी से हो जाते हैं। एसिड बेस से कुछ क्वेश्चन आते हैं, एसिड बेस अच्छा टॉपिक है, कवर करना चाहिए। उसी तरीके से मेन ग्रुप एलिमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं, बट ये बहुत वेरी करता है। इसके क्वेश्चन भी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बिकॉज इसके क्वेश्चन में एक्सेप्शन ज़्यादा होते हैं और हर बार नए क्वेश्चन आते हैं। तो टू अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन यू हैव टू अच्छी पकड़ होनी चाहिए आपकी सब्जेक्ट के ऊपर, टॉपिक के ऊपर, तब आप यहाँ से क्वेश्चन कर पाएंगे मेन ग्रुप एलिमेंट से। इसमें पी ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, बहुत सारे ऑक्सीडेशन नंबर, एसिड्स, ऑक्सो एसिड्स, ऑक्सी, दीज ऑल थिंग्स। अब इसके बाद एक जो मेजर टॉपिक है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, दैट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, 2 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री। दीज बोथ, ये दोनों टॉपिक मिलके 50 मार्क्स का क्वेश्चन देते हैं ईच एंड एवरी ईयर। अगर ये दोनों टॉपिक आपने क्लियरली अच्छे से पढ़ लिया तो 50 से 60 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और उसमें से 40 मार्क्स के क्वेश्चन आप ईजिली कर सकते हैं। तो योर फोकस शुड बी ऑन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री। इनर ट्रांजिशन मेटल से कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट से, लैंथेनाइड, एक्टेनाइड। सो बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए क्या है ये। केज एंड मेटल क्लस्टर से बहुत क्वेश्चन नहीं आता है, बट एक क्वेश्चन जरूर आता है, नीडो अरेक्नो, क्लोजो नीडो अरेक्नो पे बेस्ड होता है। मीन्स क्लस्टर का जो स्ट्रक्चर होता है, कीज का जो स्ट्रक्चर होता है, उसके बेस पे एक क्वेश्चन आता है, तो यू हैव टू रीड दिस। बायोइनऑर्गेनिक से हर साल क्वेश्चन आता है 10 नंबर का, 10 मार्क्स 10 मार्क्स के आसपास का, और वो ईजिली आसानी से किया जा सकने वाला क्वेश्चन होता है। तो बायोइनऑर्गेनिक का क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हैं।
और IR, NMR और मास बेस्ड क्वेश्चन भी कुछ आते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के। सिमिलरली न्यूक्लियर केमिस्ट्री से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो अगर ओवरऑल बात करें तो इनऑर्गेनिक अगर आप पूरा कवर करते हैं तो आप आसानी से एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे, बट ज़रूरी नहीं है कि पूरा कवर करने के बाद आप सारे क्वेश्चन कर पाएँ। तो इसलिए आपको इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स एडिशनल पढ़ने पड़ेंगे ऑर्गेनिक या फिजिकल के, ठीक है। अगर आप इसमें से चाहते हैं कौन सा मोर इम्पॉर्टेंट है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, फिर ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री है, फिर बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिर आपका बॉन्डिंग है, सिंपल है बॉन्डिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि ये क्वेश्चन इसको पढ़ें कहाँ से, क्योंकि कोचिंग तो आपको करनी नहीं है। तो कोचिंग वाले कहाँ से पढ़ाते हैं, कहीं ज्ञान दुनिया से तो लेके आते नहीं हैं, किताब से ही पढ़ाते हैं। मैं आपको बताता हूँ वो किताबें जिसको पढ़ने के बाद आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएंगे। द फर्स्ट बुक विच आई रेड वेरी डीपली इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय जेम्स हुई। कुछ आए ना आए, कम से कम 20 से 25 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन इस बुक से लाइन टू लाइन आता ही आता है। सिमिलरली, और ये जो सारे टॉपिक हैं सब इसमें मिल जाएंगे। सिमिलरली आपका मिसलेट, और इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और चूँकि ये दोनों बुकें फॉरेन राइटर की हैं, अगर आप थोड़ा सा आपका वीक है इंग्लिश और थोड़ा सा चीज़ें समझने में डिफ़िकल्ट होती हैं, देन यू शुड स्टार्ट विथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय पुरी शर्मा एंड कालिया। This book covers each and every aspects in a very comprehensive manner, but the problem is nowadays question doesn't come from this book. तो क्वेश्चन आता कहाँ से, हुई, मिसलेट और जेडली, सीवियर एटकिंस। अगर ये बुकें आप कवर करते हैं, और मैं कभी नहीं कहता हूँ कि ये सारी बुकें आप लाइन टू लाइन, चैप्टर टू चैप्टर पढ़िए, पढ़ नहीं सकते। आप टॉपिक टू टॉपिक बुक्स पढ़ना करिए, कभी भी चैप्टर वाइज बुक नहीं पढ़ना चाहिए, टॉपिक वाइज आपको बुक्स यूज़ करना चाहिए। किस बुक में कौन सा टॉपिक अच्छा है उस बुक को वहाँ से उस टॉपिक को उस बुक से पढ़ना चाहिए। एक बुक है आपकी स्कूच की एनालिटिकल केमिस्ट्री, अगर आपको एनालिटिकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो इस बुक से आप कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट इनऑर्गेनिक सेक्शन। ओके, नाउ गो टू ऑर्गेनिक। CSIR के एग्जाम में अगर सबसे कठिन कोई पार्ट होता है, सबसे टफ पार्ट कोई होता है, तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट होता है। बिकॉज ईच एंड एवरी ईयर द क्वेश्चन कम्स इन ऑर्गेनिक सेक्शन इज ऑनेस्टली गोइंग टू हार्ड। हर साल क्वेश्चन में एक नया ट्रेंड आ रहा है, स्टीरियो केमिस्ट्री का एक नया पॉइंट जुड़ता जा रहा है, और क्वेश्चन में बहुत सारी स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वॉल्व रहती है। तो इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टूडेंट बहुत ध्यान से चीज़ों को पढ़ें, उनके स्टीरियो केमिस्ट्री को ज़रूर ध्यान से देखें, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिना स्टीरियो केमिस्ट्री के नहीं हो सकती। तो मैकेनिज्म के साथ साथ आपको स्टीरियो केमिस्ट्री भी देखनी है। प्रिंसिपल ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरमीडिएट, रिएजेंट्स, transformations, asymmetric synthesis, organic synthesis, heterocycle, chemical natural product. So all these topics are important for students. And which book you can prefer? तो बेसिकली अगर आपको देखा जाए तो क्वेश्चन कहाँ से आता है, तो वो जनरली आता है पीटर साइक की बुक हुई ए गाइड टू मैकेनिज्म इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या क्लैडन की बुक हुई ऑर्गेनिक्स एंड केमिस्ट्री की। तो बेसिकली क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली आ जाते हैं। There are